welcome back. So now we are going to discuss about the topic from the chapter number 20, that is a locomotion and movement, and the topic is about skeletal system. Yes. So what is actually meant by the skeletal system? Skeletal system is actually meant by our skeleton, our human skeleton. Yes. And how our human skeleton perform, that I am going to tell you. And don't worry guys, मैं आज इस लेक्चर में आपको ह्यूमन के 206 बोन काउंट करके दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे पास स्केलेटन भी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. ये मैंने आज की एक फोटो निकाली हुई थी. तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन स्केलेटन इन डिटेल. So first of all, what is meant by skeleton? How can you define the skeleton? Skeleton can be defined as, मैं आज ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोन के नाम ही लिखूंगा. ठीक है. Skeleton can be defined as it is nothing but the internal framework of all the vertebrates. Skeleton can be defined as it is nothing but the internal framework of all the vertebrates, and it is most probably composed by two things. One is a bone and few number of a cartilage. स्केलेटन हमारा बॉडी का एक इंटरनल फ्रेमवर्क है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं बल्कि सभी वर्टिब्रेट्स का होता है. लेकिन हम स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में देखने वाले हैं, आज ह्यूमन स्केलेटन के बारे में देखने वाले हैं. सो स्केलेटन हमारी बॉडी का एक इंटरनल फ्रेमवर्क है जो कि ऑलमोस्ट दो चीजों से बना है. एक है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज. एक होता है बोन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मतलब 206 है, और दूसरा होता है कार्टिलेज. क्लियर हो गया गाइस? नाउ come to very interesting things. Remember guys, at the time of birth we have around 214 bones. जब हमारा जन्म होता है, यस, उस वक्त हमारी बॉडी में कितने बोन होते हैं? 214, 214. अब कुछ बुक्स में अलग भी लिखा हुआ है, कुछ भी बुक्स में तो काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन आई थिंक सो मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जितने बुक्स में पढ़ा हुआ है, वो है 214 बोन्स. सो एट द टाइम ऑफ बर्थ वी हैव 214 बोन्स, बट आफ्टर फ्यू डेज और मंथ इट रिमेन्स 206 बोन. तो कुछ दिनों के बाद या तो कुछ मंथ के बाद हमारी बॉडी में कितने बोन रह जाते हैं? सिर्फ 206 बोन. और अब हमारी बॉडी में कितने बोन है? 206 बोन. जस्ट अ सेकंड, मैं इंक थोड़ी फील कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक मार्कर में इंक नहीं है. सो गाइस, at the time of a birth we have 214 bones, but after few days or after few months these bones remains only 206. What happened with this remaining bone? What happened with this 8 remaining bone? So what happened? Do you know any process? The name of process is called ossification. Ossification. Ossification का मतलब होता है, yes, merging of soft bones into hard bones. ये देखिए, ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है. अब आपने ये देखा होगा कि अगर हमारे घर में अगर कोई बच्चा आता है, मतलब छोटा बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, तो उसके मदर या तो उसके ग्रैंड मदर, ग्रैनी वगैरह जो भी होते हैं, वो बच्चों को मसाज करते हैं ऑयल से. तो मसाज करने का पर्पस क्या होता है? जो सॉफ्ट डेलिकेट बोन होते हैं वो हार्ड बोन के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो कितने बोन होते हैं एक्स्ट्रा? वो 8 बोन होते हैं. और वो 8 बोन जो हार्ड बोन में मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, यस, ऑसिफिकेशन. जनरली when the baby get birth in our home, our mother, you can say mother, you can say grandmother or granny, someone, those who know the better knowledge about massaging, so they used to massage the baby on the bone by using a particular good variety of oil. The main purpose behind this massage is called
ossification. Means this massage is not ossification, but merging of a soft bone into the hard bone. This process is called ossification. This process is called ossification. And with the help of ossification, our body only have 206 bones. So remaining soft bone get merged into the hard bone. I would like to tell you guys, study of bone. What we call, do you know what is a study of bone? So the study of bone is called osteology. Yes, study of bone is called osteology, and the person who do the MD in bone specialty, they are called as osteologists. They are called osteologists. Osteologists are osteologist specialist doctor. They are called osteologists. And study of joints. Study of joints is called arthrology. And those who study arthrology, they are called arthrologists. Means joint specialists are called arthrologists. और मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर होते हैं बोन स्पेशलिस्ट, वो ऑस्टियोलॉजिस्ट प्लस ऑर्थोलॉजिस्ट एक साथ में स्टडी करते हैं, मतलब दोनों डिग्री वो अचीव करते हैं, उसके बाद ये ऑलमोस्ट डॉक्टर बनते हैं. मतलब एमडी और एमएस में, मास्टर डिग्री में और बेसिकली जो एमडी में डिफरेंस ये होता है, एमडी जनरली मेडिसिन होते हैं, वो बेसिक सर्जरी कर सकते हैं लेकिन हायर लेवल की सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन एमएस जो होते हैं वो हायर लेवल की सर्जरी करते हैं. तो डिफरेंस हो जाता है. स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. सो दिस इज बेसिक थिंग्स अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, our skeletal system provide 4 important functions to our body. First, locomotion. Second one, movement. Like this is also the movement, and this movement is performed by the you can say humerus, ulna, radius, yes, and then carpal, metacarpal, tarsal, phalanges, etc. tarsal तो सॉरी नीचे होते हैं. तो मतलब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट स्केलेटल मूवमेंट भी है ना, बिकॉज ये बोन से मूवमेंट हो रही है. So movement skeleton giving a shape to our body, giving a protection to our body, and also giving a support to our body. So these are 4 main functions like support, protection, giving a shape, and locomotion and movement. So ये 4 important, 4 या आप 5 कह लो, ये 4 to 5 important functions होते हैं हमारी body में. Now I am going to explain you human skeletal system. So human skeleton is almost divided into the 200 human skeleton have a 206 bone, and it is divided into 2 type of a skeleton. So guys, human skeleton is divided into the 2 category. So human skeleton is divided into 2 categories, and first category is the axial skeleton, second category is the appendicular skeleton. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. So human skeleton is divided into 2 categories. One is axial skeleton, and second one is appendicular skeleton. Axial and appendicular. Now what is the difference between them, axial skeleton and appendicular skeleton? Remember guys, axial skeleton, total we have 206 bones. Total we have 206 bones, and these 206 bones are divided into 2 categories, axial and appendicular. Axial skeleton is made by 80 bones, and appendicular skeleton is made by 126 bones. ठीक है? So axial के अंदर 80 bones होते हैं और appendicular skeleton के अंदर 126 बोन होते हैं. मैं आपको एक एक बोन काउंट करके डायग्राम नहीं, डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर दिखा के बताऊंगा. ठीक है? तो कंटिन्यूअसली देखिए विदाउट स्किपिंग एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो. लेट्स स्टार्ट. Axial skeleton is made by 80 bones, and this 80 bone is composed by the 3 different parts. First part is skull. First part is skull.
second part is rib cage. Yes, and third part is, are you able to see this one? Third part is vertebral column. Third part is vertebral column. Skull is made by 22 bone. Rib cage is made by 25 bone, and vertebral column is made by 33 bones. Yes, 22 bone, 25 bones, and 33 bones. So likewise, these are 22 plus 33 is equal to, yes, कितने हो गए 55, और 55 प्लस 25 कितने हो गए 80 बोन्स. मैं डायरेक्टली इतना ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको 80 बोन्स ये एक्सप्लेन करूंगा कैसे 80 बोन्स होते हैं. नाउ आई विल टेल यू. skull is made by 14 facial bone, and 7 cranium bone, and one is hyoid bone. Yes, now see, one you can say one is hyoid bone. See guys, I have a skeleton. मेरे पास पूरा का पूरा स्केलेटन है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पे कुछ हैंगिंग करने को कुछ है नहीं मेरे पास. तो मैं आपको स्केलेटन के ऑलमोस्ट पार्ट्स वगैरह बताऊंगा. मतलब आप अगर यहाँ पे कंसीडर करो, सो ये वाला हो गया हमारा स्कल, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा रिब केज, और ये पीछे है वर्टेब्रल कॉलम. तो मैं आपको पूरा ये 33 वर्टेब्रल कॉलम, 22 स्कल बोन और 25 रिब केज, ये पूरा समझाऊंगा. सो नाउ skull is made by 22 bone. Now where are these 22 bone? See guys, for your kind information, you guys are reading about NCERT textbook. So in our NCERT textbook, we don't have an explanation about every single bone. हमारे NCERT में सभी single bone के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना वो ऑलमोस्ट NCERT का डबल पढ़ाऊंगा, डबल समझाऊंगा, क्योंकि NCERT में इतना भी नहीं दिया हुआ. So skull is made by 22 bone, and how 22 bones are? 14 bones are facial, and 7 bones are cranium. अभी ये तो फाइबर से बना हुआ है, ओरिजिनल बोन का काफी वेट ज्यादा होता है. So this 14 bones are facial bones, and these 7 bones are cranium bone. Are you getting? जो सामने फेस के ऊपर बोन होते हैं ना, वो होते हैं 14. और 14 कैसे होते हैं? वो एक्चुअली 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़ी होती है, 7 पेयर होते हैं. और ऊपर जो बोन होते हैं वो 7 सिंगल बोन होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रेनियम बोन. सो अपर हेड रीजन हैज अ 7 cranium bone which are single, and 14 are 7 pair of a facial bones, 7 pair of facial bones. And now there is a one bone is called hyoid bone. So अगर आप ये ओपन करके देखें तो ये जो टंग होती है हमारे यहाँ पे टंग, तो टंग के बिल्कुल नीचे एक बोन होता है, उसे हम कहते हैं हायोइड बोन. तो हायोइड बोन को भी स्कल में ही काउंट करते हैं. तो टोटल स्कल में कितने हुए? स्कल में 22 बोन हो गए. Skull has a 22 bone, 14 are facial which are 7 pair, and 7 are cranium. So total 11, and now one is located below the tongue called hyoid bone. So 21 plus 1, how much it is? It is 22 bone. Now I tell you rib cage. Yes, आपको ये rib cage देख रहा है? This is rib cage. और ज़्यादा क्लियरली देख लीजिए, डर मत जाना बस, ये रात को सपने में नहीं आएगा, बिकॉज ये बायोलॉजी है. यस, भूतों का कोई आत्मा वगैरह शो नहीं चल रहा है. क्लियर है? तो ये देखिए, rib cage is made by 25 bones. And how these 25 bones are there? There are 12 pairs of ribs are there. 12 pairs of ribs are there. 12 पेयर मतलब कितने बोन हो गए? 24 रिब्स हो गए. अब ये देखिए, ये क्या है? ये रिब्स के पेयर हैं, ठीक है, लाइक अ
one, sorry, this is not one, this one is this is pectoral girdle one. यस, ये पेक्टोरल गर्डल का पोर्शन हमारा रिब्स यहाँ से स्टार्ट होती है. रिब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख रहे हैं आपको 11, and this one is 11 and this one is 12. This one is 12. Clear guys? So how many pairs are there? 12 this side, 12 this side, means total there are 12 pairs. Means how many ribs are there? 24 ribs are there. अब मैं आपको ये बता दूं कि ribs में भी डिवीजन है. See, 1 to 7 pairs are true ribs. ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. 1 to 7 pairs are true ribs. Why? Then I'll tell you. Wait. Then 8, 9, 10 pairs are called vertebrochondral ribs. Yes, and then 11 and 12 pairs are called floating ribs. कंफ्यूज हो रहा है लिखने में? मैंने यहाँ पे मैनेज तो कर लिया, आप समझ लीजिएगा इस थोड़ा बहुत. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सब समझ जाएगा. ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पे और एक चीज लिख लूँ. 1 sternum bone. Yes, see, there are 12 pairs of a rib cage. There are 12 pairs of a ribs. रिब केज नहीं, ये पूरी को हम कहते हैं रिब केज. लेकिन ये पेयर कितने हैं? 12 पेयर. आप देख रहे हो डायग्राम में क्लियरली, फोटोज में. सी, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ. दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10. Is it 10? Now 11th one. Yes, 11th and 12th. 11th and 12th. See, first, second, third, fourth, 5, 6, 7. These 7s are called as a true ribs. Why they are true ribs? Because they are connected to sternum bone and they are connected to vertebral column. पीछे से वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, मतलब डोर्सल साइड से वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, और आगे से वेंट्रल साइड से वो स्टर्नम बोन से कनेक्टेड है. ये वाला होता है स्टर्नम बोन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन, स्टर्नम बोन. यस, ये वाला स्टर्नम बोन. तो ये 7 पेयर जो है वो पीछे डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड है, तभी हम इनको कहते हैं ट्रू रिब्स. और ये जो 8, 9 और 10 है, 8, 9 और 10, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. क्या कहते हैं इनको? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इनको कहते हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब्स. क्यों ऐसा? बिकॉज ये वर्टेब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है पीछे, लेकिन आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है. आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए हमको इनको कहते हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब्स. अब ये देखिए 11th और 12th, ये वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन स्टर्नम तक आ ही नहीं रहे हैं. ये हवा में उड़ रहे हैं ना, ये उड़ रहे हैं, तभी इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. ये देखिए फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है, ये हवा में है ना, इसके लिए हम इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. तो कितने हो गए? 12 पेयर ऑफ रिब्स मींस 24 रिब्स and one is a breast bone also called chest bone or sternum bone. This is 25 numbers. So total कितने हो गए? 25 bone. Okay, अब हम चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं वर्टेब्रल कॉलम की तरफ. So vertebral column is having 33 vertebrae and these are like a cervical vertebrae which are 7, then thoracic vertebrae which are 12, then lumbar vertebrae which are 5, sacral vertebrae which are also 5, sacral vertebrae which are also 5, and then finally
कॉकिक्स वर्टेब्री विच आर 4। तो टोटल ये कितनी वर्टेब्री हो गई? 33। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, फोर्थ वाला दिख रहा है यहाँ तक। सो फोर्थ है कॉकिक्स वर्टेब्री कितनी होते हैं? कॉकिक्स वर्टेब्री होते हैं 4। सो टोटल ये हो गए 33 वर्टेब्री। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। सी, this is vertebral column. In this vertebral column you have to count like this. Yes, C1 stand for cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7. देख रहे हो आप? So there are 7 cervical vertebrae. 1 2 3 4 5 6 7 cervical vertebrae. Then 12 thoracic vertebrae. फर्स्ट सेकंड thoracic को कैसे बोलते हैं? T1 T2 T3 मींस thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये thoracic vertebrae आ गए। और उसके बाद सबसे मोटी वाली, सबसे मतलब जो मोटी वर्टेब्री होती है, सबसे थिक वर्टेब्री ये होते हैं। देखो ये देखो, बाकी वर्टेब्रियों से ये काफ़ी मोटी वर्टेब्री। इनको हम कहते हैं लंबर वर्टेब्री। लंबर 1 मीन्स L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, ये 4 और 5 हो गए। और इसके बाद ये 5 वर्टेब्री है। ये कौन सी है? ये है सेक्रल वर्टेब्री, सेक्रल। और उसके बाद ये जो 4 है इनको हम कहते हैं कॉकिक्स वर्टेब्री। इनको हम कहते हैं टेल बोन। हमारे एकदम पीठ पे, कमर में एकदम नीचे की तरफ जो है वो होते हैं कॉकिक्स वर्टेब्री और कोकोंजियल वर्टेब्री। ये टेल बोन वर्टेब्री होते हैं, नॉन मूवेबल वर्टेब्री। अब ये जो पहले 2 वर्टेब्री इनको हम कहते हैं एटलास और एक्सिस वर्टेब्री। और ये बेसिकली हमारा जो स्कल है उनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। यस, इनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। अब ये जो स्कल है हमारा, ये तो फाइबर से बना हुआ, इसके लिए 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा। लेकिन बाकी हमारा जो स्कल होता है वो नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा 140-145 एंगल में भी किसी का 180 में भी रोटेट होगा। जो स्पोर्ट्स में होंगे, जो ऐसी प्रैक्टिस कर सकते होंगे इतना, लेकिन 360 में रोटेट करना इम्पॉसिबल है। अगर ये ऐसा रोटेट होता है तो हमारा वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देगा और अल्टीमेटली हमारी वहीं पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? एक्साइल स्केलेटन मेड बाय स्कल 25 बोन, रिब केज, स्कल 22 बोन, रिब केज 25 बोन, and then vertebral column 33 bone. Clear everyone? Okay. Now moving towards appendicular skeleton. So appendicular skeleton is made by 126 bone, and this have like upper arm or limb, then लोअर आर्म। पहले मैं आपको अपर आर्म बताता हूँ। सो अपर आर्म इज मेड बाय, यू कैन सी दिस वन, this one is upper arm. So I'll show you how upper arm is made. Upper arm is made by humerus 1, then you can say ulna 1, radius 1, carpal 8, metacarpal 5, phalanges 14। क्लियर? काउंट करते जाइए आप लोग भी साथ में। 3 + 8 11 and 14 30। ये देखिए, एक्चुअली काफ़ी तार से बंधा हुआ है क्योंकि मेरे पास ये 3-4 साल से है पड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं डॉक्टर ने फिर भी कितनी जल्दी फिक्स कर दिया मैंने इसको। नाउ आई शो यू गाइस, दिस इज आवर हैंड। यस, थोड़ा दूर जाके बता रहा हूँ। दिस इज आवर हैंड। अब हैंड में कितने बोन है? ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड
humerus. Yes, this one is called humerus. Can you see? This one is humerus, one single. Then ulna radius. Ulna radius, ये दो बोन है. Humerus, ulna radius, one each. Yes, so these are three bone. Then these are called carpal bone. Can you see this one? Carpal. These are called carpal bone, which are 8 in number. Then these are called मेटाकार्पल. दिख रहा है आपको? इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल. अब इससे जूम करूंगा तो शायद आपको इसके अंदर का कैल्शियम भी दिखाई देगा. ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता. आप देखिए, तो ये है मेटाकार्पल. 8 कार्पल एंड देन 5 मेटाकार्पल. मेटाकार्पल कितने होते हैं? जितने हमारे फिंगर्स होते हैं, फिंगर होते हैं, थंब होते हैं. तो 5 है हमारे पास. तो मेटाकार्पल कितने हुए? 5. सो फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. एंड देन फेलेंजेस. फेलेंजेस मतलब अब ये देखिए, एक फिंगर है मेरी, कितने बार बेंट हो रही है? 3 बार ना, मतलब 3 टाइम बेंट हो रही है. ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, 3 है ना. तो ऐसे फिंगर कितने हैं हमारे पास? 4. तो चारों फिंगर 3 बार बेंट हो रही है, मतलब कितने बोन होंगे इसमें? यस, एक फिंगर में 3 बोन आते हैं. तो 4 फिंगर में कितने हो गए? 12. और ये जो थंब है, थंब एक ही बार बेंट होता है, मतलब 2 बार बेंट होता है. ठीक है, एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला. तो दो बोन ये और 12 बोन ये वाले और 2 ये, कितने हो गए टोटल? 14. तो ये देखिए, 1 ह्यूमरस, 1 अल्ना, 1 रेडियस, 3, 8 कार्पेल, 11 हो गए, 5 मेटाकार्पेल, 16 हो गए, और 14 फेलेंजेस, कितने हो गए? 14 + 16 30. 30 one arm, 30 another arm. How much it is? It is totally 30 + 30 is equal to 60. तो 60 कैसे हो गए? एक बोन. मतलब 60 कैसे हो गए? 2 आर्म के अंदर. अब हम लोअर आर्म में देखते हैं. लोअर आर्म में इनके अपोजिट होते हैं. फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, मेटाटार्सल 5 हो जाते हैं. एंड देन phalanges same 14, and then patella bone 1. See guys, this one is our leg, lower arm. Yes, this lower arm have one femur. ये कहाँ पे फिक्स होता है? मैं कैसे दिखाऊं? फीमर, ये फीमर है हमारे पैर का. ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा बोन होगा तो वो होता है फीमर. इसके अंदर रेड बोन मेरो काफ़ी ज़्यादा होता है, रेड बोन मेरो. और ये क्या करता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन, मतलब हीमेटोपोइसिस करता है. मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी बताया हुआ था. ठीक है, रेड बोन मेरो इज मेनली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. नाउ दिस वन इज फीमर बोन. फीमर बोन 1. देन टिबिया, फिबुला. आर्म्स में कैसा था? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस. लेग में कैसा है? फीमर, टिबिया, फिबुला. 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला. यस, हो गए 3. जैसे यहाँ पे कार्पेल थे तो यहाँ पे होते हैं टार्सल. आर्म्स में कार्पेल 8 होते हैं, लेकिन लेग्स में टार्सल कितने होते हैं? 7. कितने होते हैं? टार्सल होते हैं 7. कितने? 7. So 1 femur plus 1 tibia plus 1 fibula, 3 and 7 tarsal. How much? Total becomes 10. Then 5 metatarsal. These are 5 metatarsal. 10 plus 5, 15. Then phalanges, like in hand it was 14 phalanges, in leg also it is 14 phalanges. So 14 phalanges plus 15 bone is equal to 29. हो गए 29. ये देखिए, हमें 30 काउंट करने हुए. 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 3.
Then 7 tarsal, 10, 5 metatarsal, 15 plus 14 phalanges, 29. अब हम एक बाकी रहा, this is called one patella bone. इसे हम क्या कहते हैं? This is called patella bone. What? Patella bone. So 30 plus 30 is equal to 60. 30 plus 30 is equal to 60. अब बाकी बचे 6 बोन ना, देखिए pectoral girdle have 2 plus 2 bones, and these 2 plus 2 bones are, one is they are actually called shoulder bone, ठीक है, clavicle and I can say scapula. मेरे पास इतना नीचे लिखने की जगह नहीं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ. Now guys, see, this is called pelvic girdle. This is called pectoral girdle. क्या है ये? Pectoral girdle. Pelvic girdle नीचे होती है, ये है pectoral girdle. Now this pectoral girdle have 4 bones, 2 clavicle, 2 scapula. This is clavicle. This one is also clavicle. ये ribs नहीं है, ये ribs के सबसे ऊपर वाली. This is clavicle. This is also clavicle. 2 clavicle और उसके पीछे जो है इनको हम कहते हैं scapula. 2 clavicle, 2 scapula. कितने हो गए? 2 clavicle, 2 scapula means 4 bones. This is pectoral girdle. Now I'll tell you pelvic girdle. Pelvic girdle, they are having only 2 bones. They are called hip bone. See now, pelvic girdle, ये दिख रहा है आपको? This one is called, this lower one is called pelvic girdle. This pelvic girdle is having only 2 bones. These 2 bones are called as a innominate bone, also known as a hip bone. Innominate bone, also known as hip bone. They are showing pubic symphysis. Pubic symphysis. They are showing pubic symphysis, and this is the you can say significant feature for the parturition, means delivery. अगर ये काफी ब्रॉड है, मतलब अगर ये काफी इतना ब्रॉड है, तो ये फीमेल का होगा स्केलेटन, क्योंकि यहाँ पे बेबी डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये काफी नैरो है, तो ये मेल का स्केलेटन होगा, बिकॉज मेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये काफी नैरो होता है. सो गाइस, ये थे 206 बोन फ्रॉम माय साइड. मैंने आपको एक्सप्लेन किया. मैं आपको पूरे के पूरे बोन को 1-2 मिनट में पूरा समझा देता हूँ. ह्यूमन स्केलेटन इज मेड बाय 206 बोन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक्साइल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्साइल स्केलेटन इज मेड बाय 80 बोन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन मेड बाय 126 बोन. एक्साइल स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लाइक अ स्कल, like a you can say vertebral column, and hip, you can say rib cage. Skull is made by 22 bone. Out of them 14 are facial, 7 are cranium, and you can say 1 is a thyroid located below the tongue. And then rib cage is made by 25 bone, like a 12 pairs. First 7 pairs are called true ribs because they are connected to vertebral column and thoracic edge and vertebral column. Sorry, they are connected to sternum bone and vertebral column. And 8, 9 and 10 are called what? What we call them? Yes, vertebrochondral. They are called vertebrochondral ribs, or they are also called as a false rib because they are just connected to the vertebral column and connected to 7 pairs. They are not connected to sternum. And 11 and 12 are called floating ribs because they are only connected to vertebral column. They are not connected to sternum bone. Then there are vertebral column has a 33 bone. First 7 are called cervical, then 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 4 coccyx. Exoskeleton made by 126 bone. 30 plus 30, like humerus, ulna, radius, 8 carpal, 5 metacarpal, 14 phalanges. Yes, total 30 plus 30 is 60. Now lower arm, femur, tibia, fibula, 7 tarsal, 10, 5 metatarsal, 15, 14 phalanges, 29, 1 patella bone. 30 plus 30, 30 plus 30, 120. Yes, now clavicle, scapula. This is called pectoral girdle, shoulder region. 4 bones, 124.
and then pelvic girdle, two hip bone, also called innominate bone. Yes, this is two bone means 126. So 126 plus 80, 206 bone. This is 206 bone in a human skeleton or skeletal system. Now guys, tell me, do you understood everything? Oh my god. Come on guys. Is it clear to everybody? Hello.